Assalamualaikum. My name is Fazul Wahab. You're watching my YouTube channel. Yesterday we did exercise 1A from question number 1 till question number 6. And the question number 6 and 7 are almost the same. The method is the same. A union B. The union we have done already in question number 6. The intersection we did and the complement and the difference. All these things, union and the complement and the difference, all these we have done in question number 6. I think we don't need to do this again, but let's do question number 8. Question number 8 is A is 0, 2, 4, 6, 8, B is 1, 3, 5, 7, 9. Find. Again, we had to find the union. Again, this is the same one, intersection and difference, but let's do question part 1, 3, and 1, 2, and 3. Okay. Question number 8. If A is equal to 0, 2, 4, 6, and 8, and B is equal to 1, 3, 5, 7, 9, B is equal to 1, 3, 5, 7, and 9. 1, 3, 5. Find A, part 1. Find A union B. A union B to unite both of the sets. Set A, unite both of the sets, set A and B. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So this is the union of both of these sets, set A and B. We unite both of them. If this union sets, A union B, must have set the members of the set A, and that also must have the members of the set, all the members of set B. Look at this one. You got 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, and 8, and also 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. So the union sets contain set A and set B. The members of set A and set B both are exist in A union B. So this is the union of two sets. Okay. Now we have to find the intersection of two sets. Intersection means to find the common members, the common elements. So, is there anything common in both of them? No. Nothing is common. 0 is not common. 2, 4, 6, 8. In both set A and B have no common member. Therefore, we will get A intersection B. That will be what? Empty set. An empty set. Okay. So we can show empty set like this one or this one. Both the symbol we can use for empty set. So this was intersection. Intersection means to Find the common elements. Okay. So the intersection of the two sets will contain the common elements of both of the sets. Okay. Now A part 3 is A difference B. A difference B. When you subtract B from A, you will have all the elements of A, because there is nothing, no element of B exists in A. है ना, B का कोई एलिमेंट A के अंदर नहीं है, तो हम A को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए कि A B के अंदर है ही नहीं. अगर A का कोई एलिमेंट B के अंदर होता तो हम माइनस कर लेते हैं, अदरवाइज जब नहीं है तो हम सारे B के जो एलिमेंट्स है वो हम लिख देंगे 0, 2, 4, 6, 8. ठीक है, ये आपके पास A डिफरेंस भी. इस तरह से B डिफरेंस A जो आपके पास आएगा, जो कि पार्ट 4 है, B डिफरेंस A, B माइनस A. B डिफरेंस A मीन्स B माइनस A. तो B माइनस A के अंदर क्या चीज़ है? B से A 1, टोटल B के एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, and 9. Because set B have no elements of set A, so we can't subtract anything from
B, and we will get B intersection A set B, all the members of set B which is 1, 3, 5, 7 and 9. ठीक है, तो ये आपका पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके पास सेट A है, और सॉरी हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, A B C D E B E G I K फाइंड A डिफरेंस B। अब आप इसमें से डिफरेंस हम कर सकते हैं, उसकी वजह ही क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अब वैसे मैं बता देता हूँ, उसको ज़रा देख लीजिए। A डिफरेंस B ने A माइनस B, तो B को A से माइनस करे तो B तो माइनस हो जाएगा, E भी हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो आपके पास सेट आ जाएगा A डिफरेंस B A C D आपके पास आ जाएगा। आई थिंक वी डोंट नीड टू सॉल्व दिस वन, you have to copy this one in your book but you will have to do this by itself। ठीक है, आपके लिए एज अ होमवर्क आपके लिए है ये, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, okay. इस तरह से B माइनस A, आप B से A को माइनस कीजिएगा, तो जब हम B को A से माइनस करेंगे तो हमारे पास B माइनस हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा, बस हाँ, तो B और E माइनस हो जाएगा, तो जी आई के हमारे पास बी डिफरेंस ए आ जाएगा। ठीक है, यानी बी माइनस ए या बी डिफरेंस ए एस आई जी आई के हमारे पास आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ ए इज इक्वल टू दिस वन इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस वन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने का है। यूनिवर्सल सेट हमें चाहिए, कहते हैं कि ए हमारे पास क्या है, देखें यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमें चाहिए, यूनिवर्सल सेट हमें चाहिए। ए हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए जो आ रहा है दैट इज 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आ रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है हमारे पास 4 5 6 7 12, 4 5 6 7 एंड 12। अच्छा, अब फार्मूला क्या है एक कॉम्प्लीमेंट का, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है ना। ठीक है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है। अब हमें यूनिवर्सल चाहिए, तो यूनिवर्सल को इधर छोड़ देते हैं, ये ए इधर आके प्लस ए हो जाएगा। तो देखिए ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये माइनस ए को इधर लेकर आएंगे तो प्लस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट को मालूम कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, अब ए कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों को प्लस कीजिएगा। प्लस का मतलब यूनाइट करना है, असल में प्लस करने का मतलब यही है, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, ताकि एक्चुअली ये इसको अब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए आप कर सकते हैं, उसको यूनाइट कीजिए, उसको भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको यूनाइट कीजिए तो ये ओके, तो ये 1 3 4 चले 4 5 और 6 भी है, 6 भी है, 7 8 नहीं है तो 9 है और 12। ये आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको प्लस करने का मतलब क्या है, यूनियन। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब समझ लो कि वो तो कॉमन होता है, कॉमन है। ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो अब आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ये वाला। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जस्ट आपके पास यूनिवर्सल सेट निकालना है, ए आपके पास गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है, फार्मूला ए कॉम्प्लीमेंट का डाल दीजिएगा, यू माइनस ए होता है। तो ये ए इधर आके प्लस और यूनियन का मतलब एक ही है, तो हमने उसको इधर ला के उसके साथ ए के साथ यूनियन कर दिया। उसको जब हम यूनियन कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9 एंड 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन, सी इज इक्वल टू दिस वन, देन प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ज़रा उसको समझ लीजिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए।
अब इंटरसेक्शन का देखिए, मिसाल के तौर पे मैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जैसे 2 + 3 क्या होता है और 3 + 2, दोनों में कोई फ़र्क है? इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये 2 - 3 और 3 - 2 नहीं होता, तो इसमें माइनस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, प्लस में है। अच्छा, यूनियन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी अगर मैं इसको सेट ए मेरे पास है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं। जब हम यूनाइट कर देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, कॉमन होता है ना, तो कॉमन दोनों में आज सेम आ जाएगा। अब आप इसको, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए आपके पास ए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ये तो जस्ट ओनली समझाने के लिए, ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको कहते हैं। अब माइनस में नहीं है, क्योंकि माइनस में देखिए इससे आपके पास -1 आता है और इससे आपके पास +1 आता है, तो -1 और +1 तो सेम नहीं होते ना, ठीक है, तो माइनस में नहीं है, प्लस में होता है। 2 + 3 = 3 + 2, 6 + 5 = 5 + 6, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास a इज इक्वल टू, इफ़ a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 और b आपके पास है, सेट b हमारे पास है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और सेट सी जो हमारे पास ये बने वो 3 6 12 18 21, 3 6 12 18 21, 3 6 12 18 and 21, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ पार्ट्स कर लेंगे। देन प्रूव दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। अब देखिए आप इसको ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहला देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ रहा है? दोनों में जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 3 का है इसमें, बी में 3 है, मैं ही इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ ना, तो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस तरह से बी इंटरसेक्शन ए बी एम्प्टी सेट आना चाहिए, एक ही चीज़ है ना, तो बी और ए में और ए बी में एक ही चीज़ है, तो वो भी एम्प्टी सेट आ रहा है। तो ये इंटरसेक्शन बी किया, ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी हाँ, ये बी इंटरसेक्शन ए, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ रहा है और बी इंटरसेक्शन ए बी एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। देयरफॉर लिख सकते हैं इस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और इज इक्वल टू क्या है? एम्प्टी सेट है, दोनों बराबर है और वो एम्प्टी सेट के बराबर है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर हम इसी को उसमें करना चाहेंगे, दूसरा मिसाल के तौर पे ए इंटरसेक्शन सी ले लें। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। तो अभी देखें ए और सी में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। ए में अच्छा सिर्फ 3 कॉमन है, ओनली 3 कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा, ये सेट आ जाएगा, और सी इंटरसेक्शन ए बी सेट आ जाएगा, तो ये भी आपके पास प्रूफ हुआ। इस तरह से बी इंटरसेक्शन सी भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ प्रूफ करना इतना ही है, आपने सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी निकालें। देयरफॉर, ये देयर इज सिंबल हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? देयरफॉर के लिए। देखिए इस तरह से, ठीक है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए, बस इतना का इज इक्वल टू इसके बराबर है, अंडर रूट ए सेट 3 के बराबर है, इन इस सेट के बराबर है जिसका मेंबर 3 है।
तो ये करने की ज़रूरत। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।